کے شہر مورو میں پرانی دشمنی خونی داستان بن گئی. نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے 2 سگے بھائی جان سے گئے. پولیس کے مطابق دونوں بھائی عدالت پیشی کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں گھات لگا کر حملہ کیا گیا. زمین کے تنازع پر گوریجا برادری کی دشمنی اب تک 10 سے زائد جانیں نکل چکی. پولیس نے لاشیں اسپتال منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی. کمالیہ میں اندھا قتل. گھر میں گھس کر شخص کو چھریوں کے وار سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی اور پولیس نفری موقع پر پہنچ گئی. جائے وقوع سیل کر کے شواہد اکٹھے کیے اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی. کوکاڑا میں بھائی کے قتل میں ملوث مجرم کو عدالت نے قرار واقعی سزا سنا دی. سیشن جج میاں شہزاد رضا نے جرم ثابت ہونے پر ملزم خضر حیات کو عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی. عدالت کے مطابق جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مجرم کو مزید 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی، جبکہ ملزم نے معمولی تکرار پر اپنے بھائی کو قتل کیا تھا. سیالکوٹ میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپ پر بڑا وار. سول ڈیفنس کا کریک ڈاؤن آپریشن کر کے پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی. ڈپٹی کمشنر اور ضلعی افسران کی ہدایت پر چیف آفیسر کی قیادت میں شہر اور 4 تحصیلوں میں کارروائیاں کی گئیں. آپریشن کے دوران سینکڑوں مشینیں قبضے میں لے لی گئیں، جبکہ متعدد افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے. عارف والا کی ماڈل مویشی منڈی میں بیوپاریوں سے سرکاری نرخوں سے زائد فیس وصول کرنے کا انکشاف ہوا ہے. شکایات ملنے پر اسسٹنٹ کمشنر نے اچانک دورہ کیا اور کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ناجائز وصولی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی. اور بہاولپور میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام رمضان المبارک کے دوران سحر و افطار کا بڑا اہتمام جاری. ضلع بھر میں 18 بڑے کچن قائم کیے گئے ہیں، جہاں سے کھانا تیار کر کے 100 سے زائد مقامات پر مستحق افراد تک پہنچایا جا رہا ہے. رضاکار ٹیمیں گھر گھر جا کر بھی ضرورت مندوں تک کھانا پہنچا رہی ہیں تاکہ کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں نصحت نور اور میں ہوں سعدیہ. آغاز میں ہی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ اور چیئرمین پی ٹی اے نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کامران زونگ والا کی 2 منٹ بات کریں. اوکے کر لیں. زونگ کی طرف سے سب سے پہلے میں فیڈرل گورنمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا اسپیکٹرم آپشن کے لیے. پرٹیکولرلی آنریبل منسٹر آئی ٹی یہاں پہ بیٹھی ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی. چیئرمین پی ٹی اے کا اسپیشل شکریہ ہے. اتھارٹی ممبرز ہیں، پیب ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ جنہوں نے یہ ایک تاریخی اسپیکٹرم آپشن کنڈکٹ کی ہے. اس میں کافی رکاوٹیں تھیں اسپیکٹرم اویلیبلٹی میں، انہوں نے اویلیبل کیا اسپیکٹرم کافی. اور جیسے آپ سب نے دیکھا کہ تمام کمپنیوں نے بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کیا اسپیکٹرم آپشن میں، اور ہر کمپنی نے اپنے بزنس پلان کے حساب سے اسپیکٹرم خریدا ہے. تو اب آگے چل کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جو آپ کو سروسز میسر ہوں گی، جو گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن آپریٹرز میں ہوگا اور پاکستان کے لوگوں کو ان تمام سروسز کا فائدہ ہوگا. شکریہ. جی نوید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. On behalf of PTCL Group representing PTML Ufone and Telenor Pakistan جن کا مرجر ہو رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے. ہم لوگوں نے اس میں بڈ کیا تھا on behalf of the merge کو، اور میں اگین جیسے کامران صاحب نے کہا اور میں نے اس دن بھی بات کی تھی، I've been part of this journey from when it started. پاکستان میں several spectrum auctions ہوئیں. The way this auction was finalized by the Spectrum Auction Advisory Committee led by the Federal Finance Minister, Madam Minister sitting here, fighting for the industry and fighting for the stakeholders. Chairman PTA اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے اس کو فائنلائز کیا اور ایگزیکیوٹ کروایا, led by the Prime Minister of Pakistan under his vision when we started talking about 5G a couple of years ago. تو اس وقت ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ ابھی اس میں کافی ٹائم ہے, مشکل ہوگا, لیکن ہمارے شیئر ہولڈرز کی پاکستان کی انوائرمنٹ کے اوپر کانفیڈنس کا یہ ایک مظہر ہے کہ انہوں نے اس میں ایک بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور انویسٹمنٹ کی ہے. سفیشینٹ اسپیکٹرم لیا گیا جیسا چیئرمین صاحب نے بتایا.
کہ 480 میگا ہرٹز اس وقت اسپیکٹرم اس میں سیل ہوا. This now takes us into the next leap to execute that thing, launch 5G services, improve upon the 4G services available in Pakistan, جن کے اندر سب سے بڑی کنسٹرینٹ اسپیکٹرم ہی تھا کیونکہ پاکستان میں اسپیکٹرم کم تھا. بالکل اس کی ایگزامپل ہے کہ جب شاہراہ چھوٹی ہو تو اس پہ گاڑیاں کم چلیں گی, اب شاہراہ کھلی ہے تو گاڑیاں بھی زیادہ چل سکیں گی اور آپ کو بہتر کوالٹی آف سروس ملے گی. آن بہاف آف آر گروپ وی گیو یو دا کمٹمنٹ دیٹ وی ول انشور کہ پاکستان میں کوالٹی سیلولر سروسز آنے والے دنوں میں لوگوں کو ملیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے عامر سے پوچھا ہی وانٹس. میرا خیال ہے آپ ہی بات کر لیں گاڑی میں تو ادھر بات کریں. Yes, but we are all very delighted and very grateful to PTA, to Ministry of IT and to the Government of Pakistan. Kazim can take over, please. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ. ریپرزینٹنگ جاز, پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا منسٹر صاحبہ کا, چیئرمین پی ٹی اے. آئی تھنک جس طرح سے دیگر حضرات نے بھی بات کی, آکشن واز ایکسٹریملی ٹرانسپیرنٹ اینڈ دا مین فوکس جو اس آکشن کا تھا از اباؤٹ پروموٹنگ دا ڈیجیٹل فیوچر آف دا کنٹری. جس طرح سے آکشن کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنی تھیں, آئی تھنک اس سے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی امانگسٹ آپریٹرز. ہم لوگوں نے بھی فرام جاز پرسپیکٹیو کوشش کی کہ جتنی بھی فریکوینسیز اویلیبل ہیں وی پارٹیسپیٹ ایز ایگریسولی ایز پاسبل. سو لو بینڈ, مڈ بینڈ, ہائی بینڈ, ہر طرح سے فریکوینسیز اویلیبل کر کے آئی تھنک اس آکشن کو بہت روبسٹ بنایا گیا. ڈپینڈنگ آن کیا اسٹریٹجیز ہیں کس آپریٹر کی, ہر ایک کو ہر پاسبل اپرچونیٹی اس میں پرووائڈ کی گئی. ہم لوگوں نے اس میں سب سے زیادہ جو ایکسائٹمنٹ تھی ادر دین 2600 بینڈ واز اے 700 بینڈ. ناؤ جیسے ہی ہم نکلیں گے ڈینس اربن ایریا سے گوئنگ ٹورڈز رورل ایریا, یہ اسپیکٹرم ہمیں الاؤ کرے گا ٹو سرو دا 5G سروسز ٹو دا ماس کمیونٹیز, ماس ریجنس ان دا کنٹری. پلس اس سے آپ کے انڈور پینیٹریشن وغیرہ پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے. سو اگین جتنا زیادہ انہوں نے اس وقت ایلوکیٹ کیا تھا اسپیکٹرم فار آکشن ایٹ ایکسٹریملی ریزنیبل پرائسز تھرو اے ویری ٹرانسپیرنٹ پروسیس, I would again like to acknowledge everyone for their effort, and I think this is how the auction was held. I think again میں آپ کا دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. And now جس طرح سے previous speaker said کہ اب operators کی responsibility ہے on how we roll out the services and reach to the normal Pakistani and provide them with the best possible 5G services. Thank you. ایک دفعہ اچھا آپ دوبارہ بات. زون کی طرف سے میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا فیڈرل گورنمنٹ کا, پرٹیکولرلی آنریبل منسٹر آئی ٹی, چیئرمین پی ٹی اے, اتھارٹی ممبرز ہیں, پی ٹی فیب بیٹھے ہیں یہاں پہ, فیب نے کافی سپورٹ کیا. جیسے ہم نے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کافی عرصے سے آپشن جو تھی 5G اس میں کافی ایشوز تھے, رکاوٹیں تھیں, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ریزالو کیا, اسپیکٹرم اویلیبل کیا ہے اور آپشن آپ لوگوں نے دیکھی ہے, ٹرانسپیرنٹ آپشن ہوئی ہے. سب جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے, اسٹیک ہولڈرس, انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور ہر کمپنی نے اپنے بزنس پلان کے حساب سے اس میں اسپیکٹرم خریدا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان میں آج ایک نیا دور کا افتتاح ہوا ہے, نئی ڈیجیٹل سروسز پاکستان کے لوگوں کو میسر ہوں گی اور پاکستان ایک نئی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. شکریہ آپ لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. On behalf of PTCL Group representing U-Phone and Telecom Pakistan, جن کا مرجر ہو رہا ہے اور BTS مرجر کی اپروول دینے والا ہے قریب, CCP سے یہ آلریڈی ہو چکی ہے, تو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں ان دونوں کمپنیز کو. We want to thank the Government of Pakistan led by the Prime Minister of Pakistan, Honorable Prime Minister of Pakistan, the Spectrum Auction Advisory Committee led by the Federal Finance Minister, Madam Minister sitting here fighting with us, with all the stakeholders throughout this process for the last couple of years or so, in getting the spectrum vacated, in getting the spectrum made available, getting the terms to come to a level that everybody can participate and can participate in good spirit. And also our shareholders, which have shown the confidence in the and trust in the Pakistani economy and environment by investing this much, by taking quite handsome amount of spectrum, 480 megahertz out of the total of 500 and something which was made available, is a big success of the auction, is the big success of all the stakeholders.
really thankful to Chairman PTA and his team जिन्होंने इस ऑक्शन को बड़े ट्रांसपेरेंट अंदाज में डिज़ाइन किया और फाइनलाइज किया और एग्जीक्यूट करवाया. और we look forward to the Digital Pakistan vision of the Government of Pakistan, and we are there to inshallah contribute into that vision by increasing the digital penetration, the digital ambitions of the Government of Pakistan with the launch of 5G services inshallah very soon, and also improving upon and considerable improvement as per the requirement of PTA in the 4G available services in Pakistan to take Pakistan forward. Thank you very much. Pakistan Zindabad. بہت شکریہ. ہمارے تمام جو یہاں پہ آپریٹرز ہیں تینوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے وہ مشکل فیصلے کیے ہیں جو کہ ہم نے پہلے تاریخ میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ جی ایس ایم اے نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کی جو آکشن ہے اور اس کی جو کنڈیشنز ہیں اور اس کی جو پرائسنگ پالیسی ہے اور رول آؤٹ آبلیگیشنز, کوالٹی آف سروس آبلیگیشنز, ان کو ہم ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ جو ہے وہ رکھیں گے. ابھی ہماری ٹیم جو ہے وہ بارسلونا گئی ہوئی تھی موبائل ورلڈ کانگریس پہ. وہاں پہ مختلف ممالک کے منسٹرز نے آ کے مبارکباد دی کہ جس طرح کی آکشن کنڈیشنز رکھی گئیں. اس طرح کے فیصلے جو ہیں یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں مگر ان کے جو ثمرات ہیں ہم نے پوری یہ کوشش کی ہے کہ ہم گروتھ اورینٹیڈ رہیں. ہم ایسی پرائسنگ رکھیں کہ گورنمنٹ اپ فرنٹ کی بجائے جو پاس آن کرے بینیفٹ کو انڈسٹری کو بھی اور کنزیومر کو بھی. جتنی لیکوڈیٹی ہماری کمپنیز کی رہے گی, جتنی انویسٹمنٹ پاور ان کے پاس رہے گی, وہ اتنا اچھا انٹرنیٹ, اتنی بہتر پرائسنگ پہ آپ کو دے سکیں گے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پوری ایک پیکج بنایا جس میں پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بھرپور طریقے سے لیڈ کیا. 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا حتمی مرحلہ. وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ اور چیئرمین پی ٹی اے 5G آکشن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حکومت پاکستان کو $510 ملین ملیں گے. پاکستان ڈیجیٹل ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے. 480 میگا ہرٹز اسپیکٹرم فروخت ہو گیا. مزید کہا بولی کا عمل انتہائی شفاف طریقے سے مکمل ہوا. 5G کی بولی کا عمل کامیابی سے مکمل کیا گیا ہے. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے مورو میں پرانی دشمنی کے باعث فائرنگ کے واقعے میں 2 سگے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق مورو کے تھانے فرید دیرو کے گاؤں پر پرانا جتوئی میں 2 افراد عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے تھے کہ نامعلوم ملزمان نے ان پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں دونوں موقع پر جاں بحق ہو گئی ہیں. آپ کو اپڈیٹ دیتے چلے اور آپ کو بتائیں کہ مورو میں پرانی دشمنی کے باعث فائرنگ کے واقعے میں 2 سگے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق مورو کے تھانہ فرید دیرو کے گاؤں پرانا جتوئی میں 2 افراد عدالت پیشی کے لیے جا رہے تھے کہ نامعلوم ملزمان نے ان پر فائرنگ کر دی ہے. اسی پر مزید بات کر لیں گے. ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے نواب چانڈیو نے. نواب چانڈیو, مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس, بتائیے گا. مورو کے تھانے فرید دیرو کے گاؤں پرانا جتوئی میں زمین کے پرانے تنازع پر داخل مقدمات کی سنوائی پر کورٹ جانے والے 2 سگے بھائی اصغر اور دھنی بخش مشوری کو نامعلوم مسلح افراد نے راستے میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے. پولیس کے مطابق کچھ سال قبل زمین کے تنازع پر جھگڑا ہوا تھا. جھگڑے کے نتیجے میں مختلف برادریوں کے بھی کئی افراد قتل ہوئے تھے جبکہ 2 سال قبل اسی خاندان کے 2 بھائی قتل ہو گئے تھے. اور آج صبح پھر سنوائی پر کورٹ جانے والے دونوں سگے بھائیوں کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے. فوری اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ کر دونوں بھائیوں کے نعش کو اسپتال منتقل کر دیا. ضروری کارروائی کے بعد لاشوں کو ورثاء کے حوالے کر دیا ہے جبکہ دوسری جانب اس واقعے کا ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکا. جی, مقدمہ درج نہیں ہو سکا ہے. نواب چانڈیو ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. اور یہاں آپ کو بتائیں گے کمالیہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں نامعلوم ملزمان نے گھر میں گھس کر ایک شخص کو قتل کر دیا. پولیس کے مطابق مقتول ندیم الریاض کی عمر تقریباً 50 سے 55 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے. اپنے گھر میں اکیلا موجود تھا کہ نامعلوم حملہ آوروں نے گھر میں گھس کر سر اور گردن پر چھریوں کے پے در پہ وار کیے جس کے باعث وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی کمالیہ اور ایس ایچ او تھانہ سٹی پولیس کی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے. پولیس نے جائے وقوع کو سیل کر کے شواہد اکٹھے کر لیے جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا.
और वहां ओकाड़ा में अदालत ने भाई के कत्ल में मुलविस मुजरिम खिजर हयात को उम्र कैद की सजा सुना दी। सेशन जज ओकाड़ा मियां शहजाद रजा ने जुर्म साबित होने पर मुजरिम खिजर हयात को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने हुक्म दिया है कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। मुलजिम ने मामूली तकरार पर अपने भाई गुलाम मुस्तफा को कत्ल कर दिया था। दूसरी जानिब रेनाला कोर्ट में थाना चूचक पुलिस ने अंधे कत्ल का मुअम्मा हल करते हुए बेटी के कत्ल में मुलविस बाप को गिरफ्तार कर लिया है। डीपीओ ओकाड़ा डॉक्टर असद इजाज के मुसलसल फॉलोअप पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए मकतूला के हकीकी बाप मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी शेर अली भी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस के मुताबिक पसंद की शादी पर रंजिश के बायस मुल्जिमान ने कत्ल का इतराफ कर लिया है। डीपीओ का कहना है कि कातिल चाहे कोई भी हो, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता और मुल्जिमान को करारवा के सजा दिलवाई जाएगी। जोहराबाद के मारूफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां अदालत ने मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। सेशन कोर्ट जोहराबाद में साबिराबाद के रिहायशी के कत्ल केस की समाअत के दौरान मारूफ कानूनदान मलिक मौसम अली खान ने मुल्जिम सैफ और दीगर मुल्जिमान की जानिब से मौसर कानूनी दलाइल पेश किए हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुल्जिमान की जमानत मंजूर करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान के खिलाफ ताज़ीराते पाकिस्तान के दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया था और ये केस इलाके में खासी तवज्जो का मरकज बना हुआ था। दूसरी जानिब काहना के आहलू गांव कब्रिस्तान के करीब मोहम्मद रियाज नामी नौजवान को मुबैना तौर पर तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया लेन देन के तनाज़े पर पेश आया। इस वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कलीमुल्लाह से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ थाना कहना की हदूद आलू गांव में। यहाँ पर एक शख्स को नाहक कत्ल कर दिया गया है। उसके वर्सा हमारे साथ मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आसफ। आसफ, क्या हुआ था? मेरे भाई को 2200 रुपए की वजह से कत्ल कर दिया गया। क्या नाम है आपके भाई का? रियाज। अच्छा, किसने कत्ल किया? उस्मान ने। 2200 रुपए की? जी। कोई ऐसी कोई खास दुश्मनी या इससे खास कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ उसने ये बोला कि मैंने आप इधर मंशियात फरोख्त करते हो, आपको मैंने अब तुम आप इधर पुड़ियाँ बेचते हो, आपका मैंने थाने बता देना। उसने अच्छा, ये जो मंशियात फरोश हैं जी इन्होंने कत्ल किया जी। नाम क्या है? उस्मान। और उसके साथ नाम 2 लड़के हैं, उसका नाम का पता नहीं है। FIR 302 की कट गई है जी। तो पुलिस क्या कर रही है इन्वेस्टिगेशन? पुलिस जो कुछ भी नहीं कर रही। हमारा ये मुतालबा है कि CCTV को ये केस दे दिया जाए ताकि हम उनको इंसाफ मिल सके। ये कहना है जी इनके भाई का कि हमारा जो मुतालबा है हुकूमत पंजाब से हमारा केस CCD के हवाले किया जाए ताकि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए। और ये बदनामे ज़माना मंशियात फरोश है जिन्होंने ये मर्डर किया। 302 की FIR तो कट गई है, लेकिन घर वाले जो हैं वो इस FIR कटने के बावजूद भी गम में है, गुस्से में है कि इंसाफ नहीं मिल रहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से ये इनके मुतालबात हैं कि हमारा केस जो है CCD काना के हवाले किया जाए ताकि जल्द से जल्द फैसला हो सके। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं, ओकाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कैटेगरी A और B के 3 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान डकैती और चोरी के मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। DPO ओकाड़ा का कहना है कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। थाना फतेहजंग पुलिस ने जायदाद के तनाज़े पर भाई के कत्ल में मुलविस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना फतेहजंग पुलिस ने फौरी तौर पर खसूसी टीम तश्कील दी है और पेशावराना महारत के साथ मुल्जिम उस्मान अली को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सरदार मोरहन खान ने इस वाक़े का खसूसी नोटिस लिया है। उधर पाकपतन में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। DPO पाकपतन के अहकामात पर SHO थाना रंगशाह ने अपनी टीम के हमरा पुल मेहराबाद के करीब कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के कब्जा से 2100 ग्राम चर्स बरामद हुई है। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। उधर आरिफाला में वज़ीर-ए-आला पंजाब के VN मंशियात से पाक पंजाब के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना रंगशाह पुलिस ने SHO नासिर जोया की क़यादत में पुल मेहराबाद से मंशियात फरोश गिरफ्तार करके 2100 ग्राम चर्स बरामद की है। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे हवालात में बंद कर दिया।
सरगोदा के थाना बांगटावाला की हदूद में ज़हनी मजूर कमसिन लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान कामरान, मोहसिन और आमिर को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा लड़की के वालिदा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस की जानिब से सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं और मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कान्हा के इलाका में टेक्सटाइल में आग लगने की इत्तला पर रेस्क्यू 1122 फौरी मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने आग बुझाने में मसरूफियत के बाद जल्द ही आग पर काबू पा लिया। एक शख्स मामूली जख्मी हुआ जिसे जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू की टीम्स ने मुकम्मल हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया है। आपको बताते चलें कि रेस्क्यू की टीम्स ने मुकम्मल इस पर इक़दामात पर ब्रीफिंग दी है। रेस्क्यू एहलकारों ने आग बुझाने में मसरूफियत के बाद जल्द ही आग पर काबू पा लिया है। एक शख्स मामूली जख्मी हुआ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, महकमा सिविल डिफेंस सियालकोट ने गैर कानूनी तरीके से चलने वाले मिनी पेट्रोल पंप्स और गैस रिफिलिंग के खिलाफ पंजाब में पहली पोजीशन अपने नाम कर ली है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि महकमा सिविल डिफेंस सियालकोट ने गैर कानूनी तरीके से चलने वाले मिनी पेट्रोल पंप्स और गैस रिफिलिंग के खिलाफ पंजाब में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नईम बशीर ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा, सिविल डिफेंस की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की है। आप ये बताइएगा कि जो मशीनें इनके कब्जा में से ली गई हैं उन पर जुर्माना करके क्या इन्हें वापस दी जाएंगी या मुकम्मल तौर पर ये जब्त रहेंगी? नहीं जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इस तरह नहीं होता, ये मुकम्मल तौर पर जब्त रहती हैं। ठीक है। पहले टाइम में होता था कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी जाती थी, लेकिन अब इस तरह नहीं हो रहा। अब जो भी हम मशीनें लेते हैं वो हमारे पास होती हैं और जो भी मिनी पेट्रोल पंप हम सील करते हैं वो हमारे पास ही रहते हैं। इस जिम्मे में हमने कोई 385 मशीनें अभी भी हमारे पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये कार्रवाइयां अभी भी ये जारी हैं? जी बिल्कुल, ये कार्रवाइयां जारी हैं और जारी ही रहेंगी, क्योंकि ये जो बिजनेसेस हैं इनके ये रीओपन करते हैं। एक दफा अगर हम इनको पकड़ के वापस ले आते हैं तो फिर ये, क्योंकि इनको एक लग चुकी होती है लत 2 नंबर काम की, और जो कि एक पूरा माफिया है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, ये पूरा माफिया ऑपरेट कर रहा होता है। और ये जो दूसरे पेट्रोल पंप वाले, जो लीगल पेट्रोल पंप वाले होते हैं, उनके हाथ पे डाका डाल रहे होते हैं, तो शॉर्टकट ढूंढ के ये अच्छा बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन वो इसी को हम डिसकंटिन्यू करने के लिए हमारी जो सारी कार्रवाइयां वो जारी रहेंगी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि क्या हुकूमत इन लोगों के लिए कानूनी लाइसेंस या मुतबादिल रोजगार का कोई रास्ता भी दे रही है, सिर्फ कार्रवाइयां ही की जा रही हैं? अच्छा, इसमें ये है कि मुतबादल रास्ते तो ज़ाहिर अब ऑप्शन तो बिजनेस के और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये खुद ही, चूंकि मैं ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक माफिया है, तो ये इस चीज से निकलना ही नहीं चाहता। इनको लगता है कि सरकार की कोई पॉलिसी सख्त बनी है, महीना, हफ्ता, 2 हफ्ते चलेंगी और उसके बाद ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो हमारी सीएम साहबा है, मरीम नवाज शरीफ साहबा, इनकी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है और फिर वो ज़ाहिर अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट पूरे पंजाब में चल रही है, तो डीसी उसको वैसे ही कर रहे हैं। रोजगार बहुत ज्यादा है अगर ये करना चाहें तो, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते कि यही काम करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि शॉर्टकट है और बिजनेस भी अच्छा मिल जाता है। अच्छा सर, सिविल डिफेंस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है कि हुकूमत की तरफ से सिविल डिफेंस के लोगों के लिए, उनके अफराद के लिए, ऑफिसर्स के लिए कोई इनाम का भी कोई बंदोबस्त किया गया है या नहीं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ईद के बाद हम एक तकरीब करेंगे, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी है पूरे जिले के लिए। इन्होंने बहुत मेहनत की है, हमारे सीडीओज और हमारे जितने भी नौजवान हैं इस डिपार्टमेंट में काम करते। इसके बाद हम इंशाल्लाह इन्हें कैश और सर्टिफिकेट जो है वो उन इनामात से नवाजेंगे राइट आफ्टर ईद। ठीक है। डिप्टी कमिश्नर जनरल नईम बशीर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आरिफाला में मॉडल मवेशी मंडी में व्यापारियों से सरकारी निर्खों से जायद फीस वसूल करने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफाला राय फैसल इमरान ने शिकायत मौसूल होने पर मॉडल मवेशी मंडी का दौरा किया, जहां व्यापारियों से मुकर्ररा सरकारी निर्खों से जायद फीस वसूल की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान जायद चार्जेस वसूल करने में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि ये कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर अमल में लाई गई है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मवेशी मंडी में व्यापारियों के साथ किसी किस्म की ज्यादती या नाजायज वसूली हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सियालकोट में महकमा लाइफ स्टॉक ने गैर कानूनी स्लाटर हाउस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना रंगपुरा के इलाका में किसाब के गैर कानूनी प्राइवेट स्लाटर हाउस की इत्तला पर डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर तनवीर ने कार्रवाई की। हुकाम के मुताबिक मुलजिम नागा के रोज बीमार जानवरों को ज़िबा करके उनका गोश्त फरोख्त कर रहा था। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी स्लाटर हाउस को बेनकाब करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई भी जारी है। नसीराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ने बाजार का दौरा करके अशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद कैप्टन रिटायर्ड जुल्फिकार अली करार की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने बाजार का दौरा किया, जहां सब्जी, फ्रूट, गोश्त और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों और मयार का तफसीली जायजा लिया गया है। सरकारी निरखनामे की खिलाफ वर्जी करने वाले कई दुकानदारों पर जुर्माने भी आयद किए गए हैं, जबकि मुतादिद दुकानदारों को सख्ती से मुतमना किया गया है कि गिरां फरोशी से गुरेज करें, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छपकला और गिरदनवाह में एलपीजी गैस की कीमतों में अचानक इजाफा शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रहा है। जराये के मुताबिक जो गैस सिलेंडर पहले करीबन 2700 रुपए में फरोख्त हो रहा था, अब वही 4000 रुपए या इससे जायद में दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि डीलर्स मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। रेनाला कोट में मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट ने निगहबान रमजान बाजार और निगहबान दस्तर खानों के इंतजामात का जायजा लिया है। दौरे के दौरान मुआवने खसूसी सलमा भट्ट ने गिरां फरोशी में मुलव्विस अनासिर की निशानदही और आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फ्राहम करने की हिदायत दी हैं। उन्होंने निगहबान रमजान दस्तरखानों पर रोजादारों के लिए इंतजामात का भी जायजा लिया और कहा कि रोजादार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मेहमान हैं, लिहाजा उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खसूसी सलमा भट्ट ने निगहबान रमजान बाजार का तफसीली दौरा किया है। शहरियों से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए अशिया जरूरियात की मयार और कीमतों का जायजा लिया। रिपोर्ट करेंगे बख्तियार सुखेरा। फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन सलमा भट्ट ने कहा कि माह रमजानुल मुबारक में रोज़ादारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने के लिए मसाली इक़दाम किए गए हैं, ताकि आवाम को मियारी अशिया ज़रूरिया मुनासिब नरखों पर मुयसर आ सकें। है कि रमजान के महीने में कम आमदन वाले तबके की जेब पर कोई इजाफी बोझ ना पड़े, और इसी वजह से जो वज़ीर आला की जो हमेशा पूरा साल जो तवज्जो का मरकज रहता है, वो खाने पीने वाली चीजें, इसेंशियल कमोडिटीज जो हैं, अशिया खुरनोश, रोजमर्रा की चीजें जो हैं, कि उनकी कीमतें भी काबू में रहें, उनकी फराहमी भी यकीनी बनाया जाए और फरावानी भी हो। और ये सारी इन सब चीजों को अमली जामा पहनाने के लिए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, फूड सेफ्टी का इदारा है, जिला इंतजामिया है, इन सबको मुतहरिक किया जाता है। सलमा भट्ट ने कहा कि सूबा भर की तरह जिला पाकपतन में भी निगहबान रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक खानदानों को रिलीफ की फरहमी का अमल जारी है। हमने खरीदारों से पूछा और बड़ी खुशी हुई कुछ लोगों से यहाँ पे उनके तासुरात जानकर, उनसे बात कर कर, जिन्होंने कहा कि वो जिम्मेदारा करते हैं और वो लेने आए हुए थे, यहाँ से खरीदारी करने आए हुए थे। मुर्गी का गोश्त जो है वो फी किलो 15 रुपए नोटिफाइड कीमत से कम पे मिल रहा है यहाँ पर। चीनी जो है वो 140 रुपए किलो मिल रही है। आटे का 10 किलो का थैला जो सब्ज रंग का है, जिसकी नोटिफाइड कीमत 905 रुपए, यहाँ पर 850 रुपए का मिल रहा है। सलमा भट्ट साहबा ने निगहबान रमजान बाजार, मॉडल रेडी बाजार, क्लब रोड और निगहबान रमजान कार्ड एक्टिवेशन सेंटर का दौरा किया। हमारा निगहबान कार्ड प्रोग्राम जो वजीर आला ने दिया, जिसके तहत पूरे पंजाब भर में 42 लाख घरानों में फी घराना 10-10 हजार रुपए घरों में पहुंचाया जा रहा है। और पाकपतन की 2 तहसीलें हैं, इनमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 73,000 लोगों को फी घराना 10-10 हजार रुपए जो है वो कार्ड के जरिए, निगहबान कार्ड के जरिए पहुंचाया जा रहा है। बाद मामले खसूसी सलमा भट्ट ने दरगाह हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और मुल्की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हदायत पर पाकपतन में जिला इंतजामिया ने निगहबान रमजान सजा दिया गया है, जहां पर आवाम को म्यारी और सस्ती अशिया मिलेंगी। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे पाक। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं टंडोला यार में अशिया खुरनोश की कीमतों में बेकाबू इजाफा हुआ। शहरी इंतजामिया की नाकामी का इल्जाम आयद कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया बंद कमरों में बैठा करती हैं, लेकिन रेट लिस्ट पर अमल कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती हैं। दुकानदार सब्जी, फल और दीगर अशिया अपने मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि कम अज कम रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त को यकीनी बनाया जाए, ताकि महंगाई से पैदा होने वाली मुश्किलात में कमी आ सके।
महंगाई की शरह में कोई वो कमी का कोई परसेंट नजर नहीं आ रहा। जो चीज़ 200 की थी वो अभी तक चल के वही 180, 150, 160, यही नहीं, गरीब बंदा कुछ खा भी नहीं सकता। उबाड़ों में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुस्तहिक खवातीन से रकम में कटौती करने वाले 2 एजेंट्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 2 डिवाइसेस, 2 मोबाइल फोन और 37,300 रुपए नकद रकम बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के दीगर 5 साथी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। होस्ता मोहम्मद में सूबाई वजीर लाइव स्टॉक बलूचिस्तान सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली ने गोड जहांगीर खान पंजरानी में जारी तरक्याती मंसूबे का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि सड़क की तामीर का काम आला मयार के मुताबिक और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए ताकि इलाके के अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। इलाका मुकीनों ने सड़क की फ्राहमी पर सूबाई वजीर का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इलाके में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रहेगा। ओकाड़ा में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के रमजान मुबारक में अवामी रिलीफ के विजन के तहत मुआविन खसूसी सलमा बट के ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने रमजान निगहबान पैकेज, रमजान बाजारों और निगहबान रमजान दस्तरखानों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर जिला इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। मुआविन खसूसी सलमा बट ने हिदायत की कि रमजान मुबारक में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए और रमजान बाजारों में अशिया जरूरिया की वाफर फराहमी और सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मीरपुर साकरों के रिहायशी ने प्रेस क्लब घारों में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए यूसी के दफ्तर की बंदिश पर तशवीश का इजहार किया। मुमताज अली लाशारी के मुताबिक गुज़श्ता 3 बरस से यूसी घग्गी के चेयरमैन और सेक्रेटरी गायब हैं, जबकि दफ्तर के ताले लगे हैं। इस वजह से अवाम मुख्तलिफ सरकारी अमूर के लिए सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर पा रहे हैं और शदीद परेशानी का शिकार हैं। उन्होंने MNA सादिक अली मेमन, MPA हाजी अली हसन जरदारी और जिला काउंसिल चेयरमैन अब्दुल हमीद से फौरी इक़दाम की अपील की है। तहसील फैजगंज में पक्का चांग से भरिया रोड तक चलने वाली लिंक रोड गुज़श्ता 30 साल से खंडर बनी हुई है। हुक्मरानों और मुतल्लिका इदारों की मुजरिमाना गफलत के बायस इस अहम सड़क की मुरम्मत आज तक नहीं हुई। 2 अजला को मिलाने वाली ये मसरूफ तरीन सड़क अब आवाम के लिए आज़ाब बन चुकी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफसल की इस रिपोर्ट में। तहसील फैजगंज में पक्का चांग से भिरा रोड तक जाने वाली लिंक रोड 30 साल से खंडर बनी हुई, मगर अफसोस के हुक्मरानों की आंखें अब तक खुल ना सकी। 2 जिला को मिलाने वाली ये अहम सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है। जगह जगह घेरे खड़े और टूटा हुआ रोड आवाम के लिए आज़ाब बन चुका है। रोजाना सैकड़ों गाड़ियां इस सड़क से गुजरती हैं, मगर हुकूमत की नाअहली और लापरवाही की वजह से न कभी इसी की मरम्मत हुई और न ही कभी मसले को संजीदगी से लिया गया। खस्ता हाल सड़क की वजह से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, हादसा मामूल बन चुके हैं और आवाम को शदीद माली और जानी खतरात का सामना है। कि रोड के हालात बहुत ख़राब हैं। बिरिया रोड को लाश पड़ रहा है बहुत। 5 मिनट का रास्ता है, आधा पौना घंटा लग जाता है। इसके लिए हमारे टायरों की तबाही, गाड़ी की तबाही, बचता कुछ नहीं है। तो इसके लिए उनको अर्ज़ किया जाता है कि इनकी कुछ तवज्जो करें। रोड जुल्म लॻो पियो आहे, असां रोज़ पंचर गाॾियूं तबाही आहे। साईं रोड ठहे ई नथो, जुल्म लॻो पियो आहे। गाॾियूं रोज़ पंचर था थियनि, माण्हुनि जूं अलाए केतिरा एक्सीडेंट रोज़, अलाए केतिरा फुरूं रोज़ थियूं थियनि रोड सां। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस और डिस्ट्रिक्ट नौशहर फेरोज उसका ये लिंक सड़क है और फैजगंज तहसील है, शहर पक्का चांग है और इधर से शहर लगता है भिरिया रोड। ये बहुत कारोबारी शहर है और इधर ईद का मौका है। आप देखेंगे कि इस सड़क के ऊपर कितनी आमदोरफ्त है। नाकारा सड़क की वजह से आए दिन यहाँ पे डकैती होती है। लोगों का मजीद कहना था कि खराब सड़क की वजह से इस रूट पर जराइम और वारदातों में भी इजाफा हो गया है, मगर इंतजामिया और हुकूमत मुकम्मल खामोश तमाशाई बनी हुई है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, TV टुडे न्यूज़ फैजगंज।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, वहाँ खानेवाल में निजी हाउसिंग सोसाइटी और मकामी जिम्मेदारों के दरमियान जमीन के मुआहदे का तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गया। निजी हाउसिंग सोसाइटी के CCO चौधरी बिलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि साल 2020 में बारी बरादरान के साथ 29 केनाल अराजी खरीदने का मुआहिदा 3 करोड़ 6 लाख रुपए में तय पाया था और तयशुदा रकम उनकी वालिदा को अदा कर दी गई थी। उनके मुताबिक अब जमींदार मजीद रकम का मुतालिबा कर रहे हैं और 16 केनाल अराजी का इंतकाल करने से इनकार कर रहे हैं। चौधरी बिलाल ने इल्जाम आयद किया है कि बारी बरादरान ने सोसाइटी के दफ्तर में हंगामा आराई करते हुए तोड़फोड़ की और अमले को मुबैना तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। उन्होंने मुतालिबा किया कि हुकाम मामले का नोटिस लेकर दोनों फ्रीकेन के दरमियान तनाज़ा हल करवाएं। शकरगढ़ में करतारपुर सोलराइजेशन और कल्चरल पार्क मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। PMU करतारपुर और होमलैंड ग्रुप के दरमियान सोलर मुआहदा तय पा गया है। इस मंसूबे के तहत कल्चरल पार्क की तामीर और एंट्री एग्जिट टर्मिनल पर सोलराइजेशन की जाएगी। मंसूबे से ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात और माहौल दोस्त तवानाई फराहम होगी। वेल्सी के नवाही इलाका टिब्बा सुल्तानपुर में निजी फलाही और समाजी इदारे की जानिब से रमजानुल मुबारक की मुनासबत से इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया गया। टिब्बा सुल्तानपुर में फलाही तंजीम के इफ्तार दस्तरखान में मुकामी शहरियों, मुसाफिरों, रोजादारों और मुस्तहिक अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई है। इदारे के चेयरमैन हाजी फयाज हुसैन ने कहा है कि माह रमजान बरकतों और रहमतों का महीना है और इज्तिमाई अफ्तार माशरे में अखुवत, भाईचारे और हमदर्दी को फरोग देता है। मुकामी अफराद ने इस इक़दाम को सराहा और कहा है कि ये मुस्तहिक अफराद के लिए सहूलत और माशरती यकजहती का सबब बनता है। पाकिस्तान पोस्ट के अहकामात पर मुस्तफाबाद के शहरी पोस्ट ऑफिस के जरिए ईद कार्ड मुनासिब कीमत पर मुल्क के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में ईद कार्ड की मगर खुशगवार रवायत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान पोस्ट ने ये कदम उठाया है। शहरियों को तरगीब दी जा रही है कि वो अपने प्यारों, दोस्तों और रिश्तेदारों को ईद के पुरमसरत मौका पर मोहब्बत और याद का खूबसूरत इजहार करते हुए कार्ड भेजें। इंचार्ज पोस्ट ऑफिस मुस्तफाबाद मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि ये कदम नई नस्ल को इस रिवायत से रोशनास कराने में मदद देगा। जिला बहावलपुर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे तमाम रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रोजाना की बुनियाद पर सहरो इफ्तार की वसी इंतजाम जारी है। जिला भर में 18 बड़े किचन कायम किए गए हैं, जहां से खाना तैयार करके करीबन 100 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाया जाता है। टीम्स घर घर जाकर भी जरूरतमंद अफराद तक खाना पहुंचा रही हैं ताकि कोई भी शख्स भूखा न रहे। हैदराबाद में अंजुमन बदरादरी की जानिब से रमजान मुबारक के मौका पर मुस्तहिक अफराद में राशन और नकद इमदाद तकसीम की गई। अंजुमन बदरादरी की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में यतीम, बीमार, माजूर और मुस्तहिक खानदानों समेत 50 से ज्यादा अफराद में राशन बैग्स और नकद इमदाद तकसीम की गई। अंजुमन के सदर ने कहा कि बरादरी के जरूरतमंद अफराद की मदद करना हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है और अंजुमन गुज़िश्ता कई बरसों से ये फलाही सिलसिला जारी रखे हुए है। बहावलपुर में माह रमजान के मुकद्दस महीने में मुखय्यर हजरात के ताउन से सोशल वेलफेयर और पाकिस्तान बैतुल माल के इदारे की जानिब से मुस्तहिकीन अफराद में राशन तकसीम किया जा रहा है। शहरी इस इक़दाम को सराहते हुए अपनी सहूलत के लिए मुस्तफीद हो रहे हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। जी हमें बहावलपुर के सोशल वेलफेयर बैतुल माल हाफिज में यहाँ पर माह रमजान के मुकद्दस महीने पर यहाँ पर मुस्तकीन अफराद में यहाँ पर राशन तकसीम किया जा रहा था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इशफाक साहब, उनसे जाने को तो सारे सवाल बताइएगा। आज के रमज़ान शरीफ की बरकत से हमने मुस्तहिक अफराद में जो है राशन की तकसीम का डिस्ट्रिक्ट भावलपुर महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल के ज़रिए एहतमाम डिस्ट्रीब्यूशन की है और इसमें जो बेवगान और मुस्तहिकीन ज़कात और जो गुरबा हैं उनको घर के जो ज़रूरियात ज़िंदगी का राशन जो है, जिसमें घी है, चीनी है, चावल हैं, दालें हैं और इस तरह की चीज़ें जो है उसका एक पूरा हैम्पर गिफ्ट जो है वो उसकी तकसीम की है। इसमें हम मुखय्यर हज़रात के शुक्रगुज़ार हैं जिनकी मदद से आज काफ़ी सारे घरानों की मदद हुई है। डिप्टी डायरेक्टर उज़ैर साहब मौजूद हैं, सर बताइएगा इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान शरीफ के हवाले से जो है यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन की चौथी तकरीब थी। इसमें हम जो है मुखय्यर हज़रात की तरफ से जो राशन हमें फराहम किया जा रहा है
वो क्योंकि हमारे पास कुछ डाटा उन लोगों का मेंटेन है जो कि मुस्तहिक है, जिसमें बेवगान हैं या माजूर अफराद हैं या इसके अलावा माशरे में किसी भी जो है हवाले से जो है कमज़ोर है, तो वहाँ पे हमने लिस्टें मेंटेन की हुई हैं। तो जो मुखय्यर हज़रात की तरफ से राशन फराहम किया जा रहा है, तो वो हम उनको उनकी अमानत जो है उन तक पहुँचा रहे हैं। तो इसमें महकमा समाजी बहबूद जो है वो उन तमाम मुखय्यर हज़रात का बहुत मशकूर है जिन्होंने महकमे पे एतमाद किया, उन्होंने हमें यहाँ पे राशन इन लोगों के लिए पहुँचाया और हम उनके लिए दुआगो हैं। ये सारे लोग जो कि यहाँ से राशन लेके जा रहे हैं उनके लिए, उनके मालो बरकत में इजाफे के लिए जो है वो अल्लाह पाक की बारगाह में जो है दुआ कर रहे हैं। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि मुखय्यर हज़रात के मशहूर हैं जिनके ताउन से जो भी मुस्तकिन अफराद हैं उनमें राशन तक़सीम किया जा रहा है। उधर डस्का में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए इत्तिमाम अफ्तार डिनर का इत्तिमाम किया गया है, जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। चौधरी इम्तियाज अहमद की ज़ेरे सरपरस्ती मरकज उमर बिन खिताब लारी अड्डा डस्का में मुनक्का इफ्तार डिनर में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर मरकजी मुस्लिम लीग के ज़िलाई अमीर एजाज नसर ने खिताब करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन मौका है और मुखय्यर हज़रात को चाहिए कि वो ज़कात और सदकात के ज़रिए मुस्तहिक अफराद की मदद करें। हैदराबाद के मकीनों ने कौमी अवामी तहरीक में शमूलियत का ऐलान कर दिया। शमूलियती तकरीब के दौरान इलाका मकीनों और मुख्तलिफ बरादरियों के अफराद ने कौमी अवामी तहरीक पर एतमाद का इजहार करते हुए पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौका पर नए शामिल होने वाले अफराद का कहना था कि कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान पर हर मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़े रहते हैं और सिंध के हकूक के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी जानिब खैरपुर में महकमा सेहत में ग्रेड 1 से 4 तक की मुलाजमतों में करप्शन का मामला पेश आया है। हुकाम ने करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम सरदार अली वसान और फहीम भट्टी को मुअत्तल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी सेहत को खत लिख दिया। दोनों मुलजिमान हेल्थ ऑफिस में चपरासी और फहीम भट्टी सीनियर क्लर्क हैं। 2 रोज कबल एंटी करप्शन ने साबिक DHO ऑफिस के 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया था। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस रेड के दौरान खातून के जाँ बहक होने का मामला अहले खाना सरापा एहतजाज बन गए, जबकि लाश सड़क पर रखकर टायर जलाकर मरकजी रोड भी ब्लॉक कर दिया। मुतासरीन ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि खातून की मौत पुलिस तशद्दुद से हुई है, लेकिन उन्होंने मौत को हार्ट अटैक करार दिया। सिविल वर्दी में मलबूस अफराद ने खवातीन पर तशद्दुद किया और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। हमारा आला हुकाम से मुतालिबा है कि जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली की हिदायत पर गिराम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान मेगा स्टोर समेत 2 दुकानों को सरबे मोहर किया गया है, जबकि 1932 छापों के दौरान 37 क्राफ्ट फरोशों को 1,81,000 रुपए जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तर शबीर ने मेगा स्टोर पर छापा मारा। ATCG और असिस्टेंट कमिश्नर ने मेगा स्टोर के तमाम हिस्सों का मुआयना किया और एक्स पर मौजूद अशियाए खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खसूसी ब्राय फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन सलमा भट्ट ने उखाड़ा का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने निगहबान रमजान सहूलत बाजार का विजिट करते हुए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया है और दुकानदारों से अशिया जरूरियात के निर्खों के बारे में दरियाफ्त किया, जबकि सलमा भट्ट ने सहूलत बाजार में फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मुआवने खसूसी सलमा भट्ट का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि आवाम को निगहबान रमजान सहूलत बाजारों में अशिया खुरनोश, सब्जियां, फल और जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें मुनासिब रेट में मुयस्सर हों। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज।